Good evening, ma'am. Very good evening. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, shall we start the session? So, before we start, there is a small introduction. Good evening, everyone. I am Advocate Shalini Rajput, one of the founding members of Law Administration. It is my pleasure to welcome you all to today's session on Crash Course on EIB. Today's session will be led by an experienced legal expert with extensive knowledge of the All India Bar examination and the laws related to it. With deep understanding and strong expertise in legal guidance, our speaker is exceptionally well suited to help you navigate this important exam. So, we are truly grateful to have our expert with us today, and we are look forward to the valuable insight that will be shared. Before we begin, I kindly request to all the participants to hold their question until the end of the session, as there will be a dedicated question and answer segment towards the end of the conclusion. Thank you. Yes, ma'am. You may start the session. Okay, thank you so much, ma'am. Can you just confirm if I'm audible and visible? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for such a kind introduction. So, AIB exam is nearing, and you all must be stressed what to do, how to do. So, I'll just today my focus would be to introduce this particular exam to you and how to attempt, how to go about preparation करना कैसे है last moment. Ma'am, should I keep it bilingual or there is a language preference? No, ma'am. Bilingual will be Fine. Okay. easy. Okay, okay. Thank you. Okay, so first of all, I will introduce you with the particular pattern of the examination. First thing that you have to keep in mind, it is an open book examination. So, lot of students take lot of bare act, and you are usually allowed to share barrack, but preferably you take the barracks that you have, and the maximum number of barracks you have you can take. There is no restriction कि कितने number of barracks लेने हैं, कितने ले जाने हैं, कोई restriction नहीं है. There is only one point that your barrack should not have comment sessions. Now you would be thinking, what is that comment session? In your BERAC, you must be seeing that. Let me just share a BERAC with you of Indian Contract Act for a better clarity along with whatever I'm stating. Is this BERAC visible, ma'am? Yes, ma'am. Okay, so this is a BERAC of Indian Contract Act. You see, when I'm going to the section portion of it, I'll quickly scroll down to the section portion of it. These are the sections, okay? These are the sections and these are illustrations. क्या illustrations allowed है? Illustrations absolutely allowed है. That are part of your बैराक itself. ठीक है, बैराक के पार्ट ही होते हैं. बट आप देखो कहीं पे कमेंट लिखा है? इस वाले बैराक में कहीं कमेंट लिखा है? नहीं लिखा. बट आजकल जो पहले मिलते थे उस सब में एक एक कमेंट्स होंगे, केस लॉज होंगे. देखो यहाँ पे कहीं पे भी कमेंट्स कहीं मेंशन नहीं है. सी, ये आपको एक चीज डिफरेंशिएट करना है, कौन से बैरक्स अलाउड है, कौन से बैरक्स अलाउड नहीं है. जो मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखा रही हूँ वो सब अलाउड चीजें हैं इस बैरक में. वो क्या क्या है? इलस्ट्रेशंस हैं, सेक्शन नंबर्स हैं, एंड लास्ट में यहाँ पे ये चीजें हैं. क्या ये अलाउड नहीं है? ये अलाउड है. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बैरक. व्हाट आर दीज? अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई सब्सटीट्यूशन हुआ है, या कोई और सेक्शन रिफर किया गया है, all these things are allowed, but there are bare acts in which comments are there, case laws are there, वो bare act allowed नहीं है. ठीक है. I hope you people are understood what is allowed, what bare acts are allowed and what bare acts are not allowed. Now I have seen people asking me, students asking me, ma'am, can we take printouts of bare act? Yes, you can take printout. बस उसमें कमेंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, प्रिंट आउट ले जा सकते हो, उसमें कमेंट्स नहीं होने चाहिए. बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है जब आप प्रिंट आउट लेके जाते हो. क्या होता है? इफ आई गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, आई हैव कंपाइल्ड ऑल माय बेयरैक्स फॉर योर रेफरेंसेस. सी, आई हैव बेयरैक्स. दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बेयरैक्स हैं. ठीक है, दिस इज माय एनवायरमेंटल लॉ बेयरैक, दिस इज माय कॉन्ट्रैक्ट बेयरैक, दिस इज माय कंपनीज बेयरैक, दिस इज माय कंपनीज बेयरैक. सी, तीनों सब्जेक्ट के बैराक्ट हैं. अब इन तीनों में मेरे को डिफरेंशिएट करने में हार्डली एक सेकेंड लगेगा. विद द लुक एंड फील ऑफ द बुक इटसेल्फ आई नो कौन से का बैराक्ट है.
ठीक है। बट जब आप प्रिंट आउट लेके जाते हो और प्रिंट आउट बल्क में हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू सॉर्ट आउट कि कौन सा बैराक्ट है, कौन सा रेफर करना है, क्या रेफर करना है। आपका ये जो एग्जामिनेशन है, इट इज नियरली अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको क्या है, क्वालिफाई करना है इस एग्जामिनेशन को। एंड लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स। ये एग्जामिनेशन आपको कितना टाइम मिलता है? फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू इज ओपन बुक। एंड बुक कौन सी ले जा सकते हो? आई टोल्ड यू द वंस बैराक जिसमें कमेंट ना हो। आई ऑल्सो गिव यू सब्जेक्ट वाइज नेम्स ऑफ द बैराक ऑल्सो। अभी के लिए आप बस इतना समझिए, आपको क्या अलाउड है ले जाना, बैराक्स अलाउड है ले जाना। क्या आप अपने नोट्स ले जा सकते हो, की पॉइंट्स ले जा सकते हो, इंपॉर्टेंट केस लॉस के प्रिंट आउट्स ले जा सकते हो? नो, नो नोट्स, नथिंग। ओनली थिंग अलाउड इज अ बैरक। होता है ना, हमने अपने यूजी पीजी में जितना भी यूजी वगैरह में पढ़ा होता है, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाए होते हैं, क्या वो अलाउड है? पहले अलाउड थे, वो अब अलाउड नहीं है। ओके। नाउ कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट। ये एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू होता है। एंड प्लीज रिमेंबर देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला चीज जो ध्यान रखना है, आपको अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन करना है। होता क्या है, और अटेम्प्ट में एक गलती होती है, ये ओएमआर में भरवाते हैं, ऑफलाइन होता है ये। तो लोग क्या करते हैं, देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो मार्क आंसर डायरेक्टली ओएमआर में ना करते हुए, वो अपने एक शीट में, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा मेरे सेंटर में जब आई वॉज अटेम्प्टिंग। देयर वॉज अ गर्ल who was using a sheet and she was writing all, वन का ए ऑप्शन, बी का सी ऑप्शन, उसको लगा बाद में मैं एक साथ ओमार मार्क करूंगी उस, और उसने ऐसे कर दिया। ठीक है, वन का टू, वन का ये, वन का सी, टू का बी, थ्री का। ऐसे कभी मत करना, ओएमआर साथ साथ में भरना, क्योंकि क्या होता है लास्ट मोमेंट में, अगर आपने यहाँ से वहां कॉपी करने में कोई मिस्टेक कमिट कर दिया, तो आपका सारा सीरीज में गलतियां होती जाएंगी। ठीक है, ये गलती कभी मत करना, साथ साथ ओएमआर मार्क करना। ओएमआर जो है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना। कैरी योर पेन विथ यू ओनली। दे डोंट यूजली अलाउ, यू आर नॉट अलाउड टू मार्क इट विथ पेंसिल। ये सब आपके बुकलेट के फर्स्ट पेज में होगा। जितना भी जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है, प्लीज बी ऑन टाइम और बिफोर टाइम। क्योंकि यूजुअली सेंटर बहुत क्राउडेड होते हैं एंड पीपल आर ब्रिंगिंग देयर बिग बिग बैग्स विद देयर एक्ट। तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है। आप अपना यू गो लेजरली जाइए, अपना सीट पकड़िए वहां पे, एंड आसपास का एक बार माहौल देखना कैसे है। दिस इज नॉट नाइस टू से, बट एक्चुअली काफी पीपल टेंड टू डिस्कस। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो सही चीज नहीं साउंड कर रहा, आपको सही नहीं लग रहा, आप मत करना, डोंट इंडल्ज। बट रिमेंबर, वहां पे डिस्कशन होगा, दैट मीन्स वहां पे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आपको अपने पेपर पे फोकस करना है, एंड आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आप अपना पेपर फिनिश करोगे। ठीक है। अगर आपको लगता है आपको हेल्प, ऐसे सडनली मन करता है ना कि अगर हर कोई एक दूसरे को हेल्प ही कर रहा है, हम भी हेल्प करें। नो, सबसे पहले अपना पेपर फिनिश करना है। एंड वंस यू आर फिनिश्ड विथ योर पेपर, देन ओनली यू कैन सिट स्ट्रेट, एंड देन यू थिंक कि आपने जो किया है डबल चेक करना, उसके बाद ही कुछ करने जाना। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में डोंट हेल्प अदर्स, एंड उसके कारण से आपका टाइम जो है खत्म हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे टाइम ही है एक चीज जो कि आपको मार सकती है। यू हैव 100 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, you have 100 questions to attempt and you have 180 minutes. ठीक है। On an average you have 1.8 time that you can share on one question. Let me just come to the ppt that I have prepared. Ma'am, is the screen visible? Is the screen visible? I hope it is Yes, ma'am. visible. Yes, Okay. ma'am. Okay. So this is your examination. I've given my detail, contact detail, in case you have to ask something. You the PPT will be shared. You can ask me on mail, through mail also. ओके, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस से पहले मैं आपको टाइम बता देती हूँ कितना है आपका। आपको मिलेगा 3 आवर्स, 3 आवर्स फ्रॉम 1 to 4 PM। एंड आपका रिपोर्टिंग टाइम 11:30 लिखा है। आपको जितना जल्दी आप पॉसिबल हो जाए पहुंच जाना वहां पे। अब ये सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस एक बार ध्यान से स्टडी करते हैं, क्योंकि यही है जो आपको यू हैव टू रिवाइज, व्हाट यू हैव टू फॉलो विथ।
तो यहाँ पे आप वेटेज के हिसाब से पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी एंड बीएनएस। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपको बैराक दोनों लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आईपीसी से भी आ सकता है, क्वेश्चन बीएनएस से भी आ सकता है, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है किसी एक पे आए, बट सिंस इन्होंने सिलेबस में आपको बहुत क्लियरली दोनों मेंशन करा है, यू हैव टू टेक केयर, टेक द बोथ द बैराक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैराक लेके जाना है, आईपीसी ले आना है, बीएनएस लेके आना है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, साथ में उसके जो लेटेस्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ले जाना है। आपको आर्बिट्रेशन के लिए लेके जाना है, एडीआर के लिए बैराक लेके जाना है। एडीआर में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगी। फैमिली लॉ के ले जाने हैं, फैमिली लॉ के में बताऊंगी कौन कौन से एडिशनल बैराक्स आते हैं। ऐसे ये आपका सिलेबस है, आप इसका बाइफर्केशन देख लीजिए, कौन से ज्यादा हाई वेटेज में है, कौन सा लो वेटेज में। अब क्या है, प्रिंट आउट मैंने बता दिया। अब आपको एक चीज करना है, आपको अपने बैराक्स वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, स्टिकी नोट्स सुने आप लोगों ने, स्टिकी नोट्स जो नोट्स आते हैं ना, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं उसको स्टिकी नोट से मार्क करने हैं, एंड चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करने हैं। ये मैं बता रही हूँ फॉर अ लेंदी सब्जेक्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको स्टिकी नोट से मार्क कर लीजिएगा, जो चैप्टर जहाँ पे चेंज हो रहा है, ताकि आप क्विकली 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 जो है उसको पलट पलट के आप उसके आंसर्स ढूंढ सको। क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो है यही होता है, इस सेक्शन में क्या दिया है और इस सेक्शन में क्या मेंशन किया गया है, ये कौन से सेक्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ जाओ। किसी भी क्वेश्चन में लगे नहीं रहना कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है। जैसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, यू जस्ट मार्क जो आपको क्वेश्चन आपने देखा है, you just have to highlight what you have not you are not able to answer and move forward, ठीक है, कहीं अटकना नहीं है, दैट इज अ पॉइंट। उसके बाद आपको सारी बैरक्स अरेंज करना है, ये बहुत अच्छा टिप है, मतलब जो मुझे भी लगा एंड काफी सारे स्टूडेंट्स दैट हैव टोल्ड उनको भी काम आया है। आप अपने बैरक्स को अरेंज करके ले जाओगे, ऐसे नहीं किसी भी ऑर्डर में रख दिया, आपको अपने बैरक्स के ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ऊपर रखना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद सारे सिविल के सारे बैरक्स एक साथ रखोगे, सारे क्रिमिनल के बैरक्स एक साथ रखोगे, एंड उसको हो सके तो डिफरेंट डिफरेंट किसी एक शीट्स लेके ना, शीट लेके ऐसे बाइफरकेट कर लेना कि ये सारे सिविल के एक साथ हैं, ये सारे क्रिमिनल के एक साथ हैं। एंड जब आप इनको भी सेट करोगे, इनको भी एक ऑर्डर में सेट करोगे, जैसे क्रिमिनल में सबसे ऊपर आएंगे सीआरपीसी आईपीसी के, सीआरपीसी आईपीसी जब मैं बोल रही हूँ तो उनके लेटेस्ट वाले भी सीआरपीसी आईपीसी के सबसे ऊपर आएंगे, एंड बाकी सारे क्रिमिनल रिलेटेड को नीचे रखोगे। उसके बाद सिविल के आपके आ गया, टॉर्च आ गया आपका, बाकी सारे, उसके बाद सारे छोटे 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 बैरक्स, जैसे कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। ऐसे बाइफरकेट करके अपने एक्ट्स को ले जाना, ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। आप एक और चीज कर सकते हो, सपोजिटली आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पास बैरक बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, बैरक बहुत ज्यादा हो गए हैं, और आपको लगता है कि और अगर मैं ऐसे खरीदने लगूँ तो मुझे तो बहुत सारे बैरक्स खरीदने पड़ेंगे, और वो ये बैरक्स तो मेरे को आगे काम आने ही नहीं है, और इस पे तो कमेंट्स भी नहीं है, केस लॉज भी नहीं लिखे हुए हैं, तो आगे मैं इन बैरक्स का क्या करूंगा। इसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ। इसका है, जैसे आपको लगता है ये तो बहुत ही माइन्यूट है, ये मैं नहीं ले जाना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप शेयर शेयर कर सकते हो, और अगर शेयरिंग नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हो, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द इंडेक्स ओनली ऑफ द बैरक। डिड यू गेट द थिंग दैट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द बैरक्स इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, आपको सेक्शन नंबर और सेक्शन नंबर के साथ में क्या लिखा है बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इनकेस आपको जैसे क्वेश्चन में आ गया कि सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मेंशन है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये आपको सेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक्ट को लेके ही जाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ। तो आपको क्या है, इंडेक्स में ही पता चल जाएगा, ये हेडिंग लिखा होगा ना इंडेक्स में, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडेक्स से ही आंसर सॉल्व कर पाओगे, आपको पूरा का पूरा बैरैक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वैसे जिनके बैरैक्स भी आप ले जाते हो, अगर सेक्शन लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन है तो डोंट गो इनटू सेक्शन लैंग्वेज, आप इंडेक्स से ही उसको सॉल्व करो एंड क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं पेपर करते हुए में। एंड दूसरा, अपना फोन नंबर और अपना नाम अपने बैराक में लिख लीजिएगा,
क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके बैरक किसी और के हाथ में आ जाए एंड आपके पास किसी और का बैरक आ जाए। तो इन केस अगर आपने फोन नंबर लिखा होगा तो पर्सन जो है आपको आपका नाम और फोन नंबर लिखा होगा तो चांस है कि आपके पास बैरक आपको वापस मिल जाए। ओके, तो ये है आपके सब्जेक्ट्स, ये है सब्जेक्ट के वेटेज। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल एंड आप लोग सब इसका नोट ले लीजिएगा। I'll try to I have to add few things also to this, and once it is done then I'll forward it with the coordinators and they will forward the PPT to you people. ये मैंने आपको बता दी 3 hours का है and these are the timings that you have to go with. अब ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं बेरैक्स जो आप ले जा सकते हो। एडवोकेट्स एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एडवोकेट्स एक्ट में बहुत सिंपल सिंपल चीजें दिए हैं कि एडवोकेट अपने आप को कैसे वेयर डू दे स्टैंड, उनके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या फॉलो करने चाहिए, ऐसे बेसिक चीजें एज एन एडवोकेट आपको पता होना चाहिए, वो है आपके एडवोकेट्स एक्ट में। आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट है, ये एडीआर के अंदर फॉलो इन करता है, फिर सीपीसी सीपीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड ये एक्ट है। तो ये मैंने एक्ट्स के कुछ नाम हैं जो बैराक के नाम जो कि आप ले जा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ कोई एक बैराक में आपको स्टडी करवा देती हूँ तो क्या आपको आइडिया लग जाए कि हाउ यू आर सपोज टू स्टडी अ बैराक। आप लोग सब ने अपने यूजी एंड पीजी में काफी सारे एक्ट्स पढ़े होंगे। तो होता क्या है, जब हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ लेते हैं ना तो हमें याद नहीं रहता कि एक्ट्स में क्या है क्या नहीं है। तो वो बहुत ही दैट इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद एवरीबडी। सो यू डोंट हैव टू वरी। पहली चीज, इस एग्जाम के लिए टेंशन मत लेना, बस बैराक लेना। ठीक है, टेंशन नहीं, बैराक ही लेके जाना है। एंड मैं अब आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको मैं आप ये समझ पाओ कि आपको अपना रिवीजन कैसे करके जाना है इस एग्जाम के लिए। आप सबने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही होगा अपने प्लीज टेक आउट योर बैराक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्विकली। आई एम गिविंग यू 1 minute, काइंडली ब्रिंग इन योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बैराक्ट। बैराक कॉन्ट्रैक्ट का बैराक खोल लीजिए। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है। आई होप यू हैव brought in your बैराक। I'll wait for 1 more minute. Those who are trying to bring it, kindly bring it. अपना बैराक खोल लीजिए, इंडेक्स पेज। आई होप यू हैव ओपन्ड। तो मैं मार्क करवा देती हूँ इंडेक्स से ही, सबसे इंपॉर्टेंट से मार्क कराती हूँ। सबसे पहले मार्क करिए सेक्शन 10। क्लॉज 2 के कुछ सब क्लॉसेस इंपॉर्टेंट है, वो जब मैं क्लॉज 2 में स्क्रॉल करूंगी तब मैं मार्क करवा दूंगी। सबसे पहले मार्क करिए सेक्शन 10। सेक्शन 10 के बाद मार्क करिए सेक्शन 11। सेक्शन 11 देन मार्क फ्री कंसेंट सेक्शन 14। सेक्शन 14 छोटा छोटा मार्क करना, पेंसिल से मार्क करना। एंड देन मार्क 26। देन मार्क सेक्शन 56। सेक्शन 56 impossibility। देन मार्क 64 65। 64 65। Then chapter 5 is quasi contract. Chapter 5 is related to quasi contracts. And this chapter 6. चैप्टर 6 मार्क कर लीजिए। उसके बाद 124, 124, 126,
124, 126, 148, 148, 172, 182, दैट इज इट। क्लॉज में आ जाइए। टू, सेक्शन टू, एच, टू एच, सेक्शन टू एच। नाउ विल टेल यू हाउ टू रिवाइज दिस सेक्शन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ कुछ चीजें जो कि पूछ सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक्ट में सबसे पहले इस नंबर का मतलब पता है सबको? 9 ऑफ 1872। 9 का 9 डिजिट का मतलब पता है? यहाँ पे 9 का मतलब होता है 1872 में बने हुए एक्ट्स में ये 9th इन सीरीज है। ठीक है, तो अगर आपको एक्ट का नंबर पूछे तो व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आस्किंग फॉर दिस नंबर 9 ऑफ 1872। 1872 में आया ये 9th एक्ट है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद दो आपके हर सेक्शन में होता है। एक होता है डेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड एक होता है डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। देयर आर टू डेट्स दैट यू सी हियर। ये सब ढूंढने के तरीके मैं बता रही हूँ आपको। ढूंढने के लिए अगर डेट कभी आया, आया मतलब व्हेन फ्रॉम इट, फ्रॉम अ बिल इट बिकेम एन एक्ट, व्हेन इट गॉट केम इनटू इफेक्ट और व्हेन द प्रेसिडेंट गेव इट्स एसेंट। इन सब का डेट है यहाँ जो मेंशन होता है। बैरा खोलते ही आपके हेडिंग के सबसे नेक्स्ट जो नंबर आता है ये है वो एक्ट, ये है वो डेट, दैट इज 25 अप्रैल 1872। सारे बैक में बैराक में यही सेम प्रिंसिपल लगाना है। दिस इज द डेट व्हेन योर एक्ट केम इनटू इफेक्ट, व्हेन दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट। अब सेकंड डेट क्या होता है? व्हेन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। आई होप एवरीबॉडी नोज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग इनटू इफेक्ट एंड कमिंग इनटू फोर्स। कमिंग इनटू फोर्स डेट कहाँ होता है? वो यूजुअली कहीं और नीचे, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। दिस इज द डेट व्हेन इट केम इनटू फोर्स। आप अपने सारे बैराक के कमिंग इनटू इफेक्ट एंड कमिंग इनटू फोर्स के डेट्स को एक बार देख के जाओगे, वन थिंग। ठीक है, उसके बाद आपके डेफिनेशन क्लॉज आता है। डेफिनेशन क्लॉज आपको ऐसे रिवाइज करना है कि इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है। जस्ट रीड कि क्या डिफाइन किया गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर मैं बोलूं, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू रिवाइज। देखो अभी विद इन 3 days आई कैनॉट टीच यू ऑल द सब्जेक्ट्स, सो आई एम जस्ट टेकिंग अप वन सब्जेक्ट टू टेल यू हाउ यू हैव टू क्विकली रिवाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपने बैराक निकाल लिया, आपने सेक्शन 2 निकाल लिया, आपको बस ये देखना है इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं बोला गया कि व्हाट इज अ प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल होता है एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा बंदा ऑफर को एक्सेप्टेंस देता है, एक्सेप्टेंस के साथ कुछ कंसिडरेशन आता है एंड कंसिडरेशन अलोंग विथ एक्सेप्टेंस एवरीथिंग एंड एग्रीमेंट बनता है। ऑल द कंसिडरेशन पुट टुगेदर बिकम्स अ एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट फाइनली व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एक प्रोसीजर है ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस। ये आपके कहाँ से आपको पता चल रहा है? सेक्शन 2 से पता चल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ ये सब डिफाइंड है। तो क्लॉज 2 यू हैव टू रीड सारे बैराक्स के। क्लॉज 2 रिवाइज करने के बाद ये सब बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है। तो आप आ जाए सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रिवाइज करने के लिए सबसे पहले आप सेक्शन 10 से स्टार्ट करोगे। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ओनली दोज एग्रीमेंट जो कि इसमें दिए हुए 4-5 पॉइंट्स फुलफिल करते हैं तभी वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, राइट? तो जैसे कि आप यहाँ पे यहाँ इस सेक्शन 10 से, सेक्शन 10 को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सेक्शन 10 ही सारा आगे का डिटेल्स बताता है। यूजुअली मैं सेक्शन के साइड में ही लिख लेती हूँ, बट आप बैराक में ज्यादा कुछ मेंशन मत करना, बस आप सर्कल या इतना ही करना। डोंट राइट एनीथिंग बिकॉज राइटिंग विल अमाउंट टू मेकिंग ऑफ नोट्स एंड दैट इज नॉट अलाउड एनीमोर। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय फ्री कंसेंट। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट, मैं बस बताने के लिए आप अपने एक शीट और ले लीजिए, उस पे चाहे तो लिख लीजिए, जैसे रिवाइज करने के लिए काम आएगा। कॉम्पिटेंसी कहाँ है? अगले सेक्शंस में। सेक्शन 11 एंड 12 इज डीलिंग विद कॉम्पिटेंसी। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट इज इन 24 and 25. Free consent is from 13 to 22. All agreement and contract if made by free consent. यहाँ पे ये फ्री कंसेंट इज फ्रॉम सेक्शन 13 टू 22। फ्री कंसेंट के बारे में ही है 13 से लेके 22। 13 में बताया गया है जैसे कि कंसेंट क्या होता है, उसके बाद फ्री कंसेंट क्या होता है बताया 14 में। 14 में बोला इफ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोअर्जन। I'm just speaking out the words so that you are revising this subject with me. Coercion, undue influence, fraud, mistake, misrepresentation, ये सब आपके further on going sections में 22 तक यही है। ठीक है, coercion, CUFMM, CUFMM,
ऐसे मैंने रिवाइज करवाया था, CUFMM कोवर्जन ऐसे 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16 17 से ये CUFMM है। उसके बाद वो हो गया कॉम्पिटेंसी में, आपको पता होना चाहिए कि क्या एज लिमिट है। यहाँ पे एक बार सिंस आई एम रिवाइजिंग, आप एक शीट में लिख लीजिए सेक्शन 11 के लिए, मोहिरी बीबी धर्मोदास घोष। मोहिरी बीबी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑफ सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी। मोहिरी बीबी धर्मोदास घोष। उसके बाद 12 में बताया गया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिलेटेड। उसके बाद फ्री कंसेंट के सेक्शन, मैंने क्या बताया था, फ्री कंसेंट के कहाँ से सेक्शन है, फ्रॉम 13 टू 22, राइट। तो शुरुआत ऐसे होती है, 13 में कंसेंट बताया है, फिर वो फ्री कब है, फ्री CUFMM, CUFMM कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बस आपको एक बार बैराक का शक्ल देखना है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इससे ज्यादा टाइम आपको इस पे स्पेंड नहीं करना। ऐसे ही आपको सब सब्जेक्ट में इतना ही टाइम स्पेंड करना है। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसे देखो यहाँ पे मेंशन आपको समझ में आ रहा है। फिर 19 में क्या है, इन अगर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब है, तो इफेक्ट क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ये कहाँ से पता चलता है, 19 से। ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा, कहाँ से पता चलता है, 19 ऑन दी ऑप्शन ऑफ एदर ऑफ द पार्टी। फिर 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड बोला गया है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल हो जाएगा, 19A से पता चल रहा है। This is how you have to revise your all barracks. I'm just quickly, then mistake है, mistake of fact Indian law होता है, mistake of foreign law होता है, mistake of Indian है in section 20, and then mistake of fact है 21 22 में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए 23 24। लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन 23 में है, व्हाट इज कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो कि लॉफुल होता है। उसके बाद 24 में अगर पार्शली लॉफुल है, पार्शली अनलॉफुल है। ये सब आपको रिवाइज हो रहा होगा ना। उसके बाद आपका 26 से क्या स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्रेसली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 10 का लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था। सेक्शन 10 का लास्ट पॉइंट क्या था, कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वो कहाँ है, सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक। सेक्शन 20, जस्ट सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक आपका ये है डिक्लेयर्ड वॉइड। तो सबसे पहले किसी भी तरीके से आप अगर मैरिज पर रिस्ट्रेन लगाते हो, किसी भी तरीके से, वो रिस्ट्रेन पार्शल भी हो सकता है एंड रिस्ट्रेन फुल रिस्ट्रेन भी हो सकता है, टोटल रिस्ट्रेन भी हो सकता है। दोनों रिस्ट्रेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पार्शल लगाना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देगा। एग्रीमेंट सिमिलरली आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, वो भी वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोटेबल चीजें हैं, जैसे प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये 3 वर्ड यूज किया गया है। बट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज किया गया होता है, प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। 19(1)G, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)G में सिमिलर प्रोविजंस है। फंडामेंटल राइट है ना आपका, ये 19(1)G में। तो उसमें एक एक एडिशनल वर्ड है ऑक्यूपेशन, यहाँ पे नहीं है वो वर्ड। तो ये तो जुडिशियल लेवल का क्वेश्चन हो गया, बट यहाँ पे मतलब मैं कोई ध्यान आया तो मैंने बस शेयर कर दिया वो पॉइंट। उसके बाद 28 में क्या है, 28 में है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। किसी भी तरीके से आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते करके कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को क्या अपना मोबाइल फोन बेचोगे, एंड अगर आप बेचोगे, तो बेचने पे आप मेरे को मोबाइल फोन बेचोगे, मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगी, ठीक है, ऐसे हमारा अग्रीमेंट होता है। और हमारे में एक और क्लॉज मैंने ऐड कर दिया कि कल को अगर आप पैसे भी नहीं दोगे मेरे को, तब भी हम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्या हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, किसी भी तरीके का कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा सकते, वो वॉइड होगा। बट क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज लग सकते हैं, या फिर फॉरम के रिगार्डिंग की हमें इस कोर्ट में, इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में जा सकते, ऐसे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। आर्बिट्रेशनल क्लॉज आपने देखा होगा, सीपीसी में भी प्रोविजंस है, आर्बिट्रेशन क्लॉज मैंडेटरी करो सिविल सूट्स के लिए। तो द पॉइंट इज, ऐसे आर्बिट्रेशन क्लॉसेस लगा सकते हैं, बट हम रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि नहीं जा सकते करके। ये आपका कौन सा हो गया, सेक्शन 28 हो गया। फिर सेक्शन 29 इज अनसर्टेनिटी। अगर आपका एग्रीमेंट अनसर्टेन चीजों को लेके है, कि मैं अगर बोलती हूँ काइंडली गिव मी 10 लीटर्स ऑफ ऑयल, ठीक है, क्या ये एग्रीमेंट सही है, ये एग्रीमेंट सही नहीं है, क्योंकि अनसर्टेन, कैसा ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कौन सा ऑयल, अनसर्टेन है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि काफी अनसर्टेन होते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप वॉइड बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 29 का अनसर्टेनिटी। लास्ट है वेजरिंग, वेजरिंग अलाउड नहीं होता, वेजरिंग एग्रीमेंट
वेजरिंग बेसिकली मीन्स कोई अनसर्टेन इवेंट को लेके आप दो पार्टीज लूजिंग एंड विनिंग, कोई एक पार्टी लूज कर रही होती है, कोई दूसरी पार्टी विन कर रही होती है, अनसर्टेन इवेंट के लिए आप सट्टा बोल लो, ये सब करना, लॉटरी, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 30 हो गया। यहां तक तो आपको एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली 10 से लेके 30 तक आपको सारे रिवाइज करने हैं। इसके आगे बस जो मैंने आपको बताया कंटीजेंट एग्रीमेंट क्या होता है, कुछ कंडीशंस के ऊपर जब होता है तो उसको कंटीजेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द इंडेक्स एंड क्विकली मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी आगे की कुछ बैरक्स को याद करने, सेक्शन नंबर्स को याद करने के लिए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट पर से बट दे आर सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड बट येट दे आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद 56 मैंने आपको बताया था इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है आपका। दो तीन केसेस के नाम लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही जो लैंडमार्क केसेस होते हैं ना वही पूछते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ केसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, सारे केसेस के नाम तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं है एंड इतना वो पूछते भी नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी के केसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉसिबिलिटी वाले केसेस आप कहीं और मेंशन कर लीजिए चढ़ने से पहले रिवाइज करके, देन यू कैन मूव इनसाइड। इम्पॉसिबिलिटी के केसेस लिख लीजिए, टेलर वर्सेस कैडवल, TAYLOR वर्सेस कैडवल, CALDVELL, टेलर वर्सेस कैडवल। दूसरा, बूटलिंगा एजेंसी वर्सेस VTS पुरिया स्वामी, VTS पुरिया स्वामी। एंड एक और केस, क्रेल वर्सेस हेनरी, क्रेल वर्सेस हेनरी, क्रेल वर्सेस हेनरी। एंड नेक्स्ट, सत्यप्रदा घोष, सत्यप्रदा घोष वर्सेस मुंगनीराम बंगूर एंड कंपनी, सत्यप्रदा घोष वर्सेस मुंगनीराम बेंगूर एंड कंपनी। ये आपका ब्रीच, ये हो गया आपका इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन नंबर 56, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्वांटम ऑफ डैमेज में आता है आपका सेक्शन, लास्ट ब्रीच के सेक्शन जो है सेक्शन 74, तो सेक्शन 74 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट वन। यूजुअली जब आप कॉन्ट्रैक्ट वन बोलते हो एक सेमेस्टर में आप इतना पढ़ते हो। इसके बाद आता है ये इंडेमनिटी वारंटी। इसको मैंने याद कैसे किया हुआ है, एक एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स के आगे 1 लगा दो, 124। ठीक है, 124 में आपका कॉन्ट्रैक्ट टू के सेक्शन नंबर स्टार्ट होते हैं। 124 में है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसा एक अग्रीमेंट जिसमें ये बोला है कि आपको जो भी लॉस होगा वो मैं आई विल पे द लॉसेस ऑफ योर्स, ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी क्या होता है? इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं, गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस बंदे के लिए गारंटी कोई थर्ड पर्सन देता है, जो गारंटी देता है उसको आप क्या बोलते हो? श्योरिटी बोलते हो। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग विथ यू सर्टेन विथ वर्ड्स ताकि आप रिकॉल कर पाओ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है। तो 124 इंडेमनिटी बताता है, 126 गारंटी बताता है। 126 मैंने मार्क करवाया था ना, आई होप मैंने मार्क करवाया था। 124 126 बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको आपको आइडिया लग जाएगा ना कि यहाँ इंडेमनिटी है, 124 में इंडेमनिटी है। 126 आप ढूंढना ना पड़े आपको गारंटी के बारे में, कोई क्वेश्चन आता है तो 126 के बाद से गारंटी के बारे में है। उसके बाद बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है कि आप कोई चीज अपना किसी को रखवाते हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड जब वो पर्पस खत्म हो जाता है वो इंसान वापस रिटर्न करता है। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं अपने क्लोथ देती हूँ किसी को कि वो स्टिच करके मेरे को टेलर मेरे को स्टिच करके वापस कर दे, इसको आप क्या बोलते हो? बेलमेंट बोलते हो। ठीक है, ऐसे प्रोसीजर को व्हेन यू टेम्पररी गिव सर्टेन थिंग टू समवन एंड वंस द वर्क इज डन द थिंग हैज टू बी रिटर्न बैक टू यू, इसको बेलमेंट बोलते हैं। कहाँ डिफाइंड है ये मैंने याद किया था, सेक्शन 24। एक दिन में कितने घंटे? 24 आवर्स, 24 आवर्स का डबल कितना? 48। तो 48 में क्या है? बेलमेंट। अंडरस्टैंडिंग, दिस आर स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स दैट आपको क्विकली आंसर करने में काम आएगा। 124 हो गया, 148 हो गया। उसके बाद 172 में 172 में प्लेज है। प्लेज जब आप अपना प्रॉपर्टी फॉर लोन रखते हैं तो उसको प्लेज बोल देते हैं। लास्ट इज एजेंसी, 182। 182
एजेंट कौन होता है? एजेंट होता है प्रिंसिपल के को बिहाफ में, प्रिंसिपल को के बिहाफ में जब कोई एक्ट करता है, किसी और के बिहाफ में जब कोई एक्ट करता है, तो उसको आप एजेंट बोलते हो। ठीक है, दैट इज इट फॉर योर रिविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको समझ में आया कि मतलब कितना टाइम लिया हमने, मुश्किल से 15 मिनट्स लिया हमने। दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज ऑल योर सेक्शन लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया। अब मैं आपको एक दो बैरक्स के आज मार्क करवा देती हूँ, सिमिलरली बाकी बैरक्स कल परसों मार्क करवा देती हूँ। अब नाउ काइंडली टेक योर कंपनीज एक्ट बैरक। कंपनी एक्ट का बैरक निकाल लीजिए एंड टेक आउट, लेट मी जस्ट सी मैंने कौन कौन से। यू कैन टेक आउट योर एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड बैरक्स इफ यू हैव, एनवायरमेंटल लॉ के रिलेटेड बैरक्स इफ यू हैव। I'm giving you 2 minutes. Kindly bring your environmental law barak and company law barak and family law barak also. जब मैं फैमिली लॉ बोल रही हूँ, what I am meaning is Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Minority Guardianship Act, Hindu Adoption and Maintenance Act, Hindu Disposition of Properties Act, and Muslim में है Muslim Women's Protection of Rights on Divorce Act, Dissolution of Muslim Marriage Act, Muslim Personal Law, Muslim Women Protection Rights, ये सब specific. I hope you people have gone to take the barracks. I'll wait for 2 minutes and then I'll quickly make you mark also. If you have, if you're sitting with your barracks, kindly keep your company law barrack at the top. कंपनी का इंडेक्स निकाल लीजिए, कंपनी लॉ का इंडेक्स निकाल लीजिए। ऐसे ही रिवाइज करना है क्विकली क्विकली। जैसे कंपनी लॉ में सबसे पहले टू में डेफिनेशंस है, टू इंपॉर्टेंट है बट प्लीज बहुत लेंथी है टू। आपको टू के सारे प्रोविजंस आने जरूरी नहीं है और सारे रीड करने भी जरूरी नहीं है, बट सिंपल सिंपल कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टू में जब जाएंगे तो मार्क करवा दूंगी। फिर आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम कहाँ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहाँ है, 4 and 5, सेक्शन 4 and 5, सेक्शन 4 and 5, सेक्शन 13 and 14, इसी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का ऑल्टरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का ऑल्टरेशन 13 and 14। ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2 बेसिकली ये बताता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट आप कैसे करते हो। तो वही आपका प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस नहीं सॉरी, एक कंपनी का मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहाँ पे है, ये मैंने मार्क करवा दिया। उसके बाद क्या है, अगला आता है प्रोस्पेक्टस, अगला चैप्टर है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो होता है एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कहाँ लिखा हुआ है 31-32 में, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 32 इस टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। और इसी में अगर इफ प्रोस्पेक्टस में कोई डिफेक्ट है, उसी कारण से जो क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, सिविल चार्जेस लगते हैं, 34-35 में है, 34-35 में चार्ज जो लगता है उसके उसके कारण से। आ रहा है समझ में? उसके बाद शेयर्स में आ जाते हैं, शेयर्स ऑफ अ कंपनी, काइंड्स ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है 43। दो टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं आपके, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है टू टाइम, प्रेफरेंस आर गिवन एट टू डिफरेंट स्टेजेस। वन इज जब जब डिविडेंड्स आर गिवन बैक, एंड सेकंड व्हेन वाइंडिंग अप के टाइम पे। ये दो टाइम पे जहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है उनको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स बोलते हैं, एंड बाकियों को इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास एक्चुअली इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो दे आर लाइक द ओनर्स, वही है जो चलाते हैं कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर्स।
ये हो गया डिबेंचर, एक चीज होती है डिबेंचर इज बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ लोन दैट अ कंपनी टेक्स। 71 एक्चुअली बस यही होता है, डिबेंचर पे एक क्वेश्चन आता है ना, आपको ढूंढना ना पड़े, बस इसके लिए मार्क कर लो। 71 में डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स, सेक्शन 71 में डिबेंचर्स है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सॉरी ये वाला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि मीटिंग्स कब होती हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग होती है कंपनी एक्ट में। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मीटिंग में आपका आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, 96 में दिया है, 96 में दिया है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए 96 को। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 100 में। उसके बाद 101 से लेके 105 को ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, एक एक मगर मार्क मत करना, ऐसे एक साथ डाल दो बस सबको, ऐसे साइड से, ऐसे 101 से लेके 105 तक। उसमें यही है क्वारम क्या है, नोटिस कैसे भेजना चाहिए, प्रॉक्सी कौन दे सकता है, क्या ऐसे प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंडिविजुअली दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको कहाँ ढूंढना है। फिर रेजोल्यूशन जो पास होते हैं आपकी मीटिंग में, दो टाइप ऑफ रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, 114 में है, 114 में है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है CSR 135, ये सेक्शन नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 135 नॉट ओनली फॉर AIB, फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ऑल सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम, 135 डन। इसको CSR बोलते हैं, कुछ सोशल हर कंपनी का कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो आपके सेक्शन 135 में दिया है। 135 को CSR रूल 2022 में एक रूल आया है, खैर आपके इस एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कंपनी के डायरेक्टर्स कहाँ मेंशन्ड है, मतलब अगर मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही होती तो मैं आपको डिटेल में बताती, अभी लिखा हुआ था तो मैंने आपको बस शेयर कर दिया ये पॉइंट। डायरेक्टर्स के बारे में कहाँ मेंशन्ड है, आपके मेंशन्ड है 149 में, डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, एक डायरेक्टर कितने कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, ये सब चीजें 149। उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड 173। जो जितना मैं मार्क करवा रही हूँ बस वही सेक्शन ऊपर से देख लेना, और कुछ सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। 241 नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर 241। एंड लास्ट इज अपील टू ट्राइब्यूनल, अपील टू ट्राइब्यूनल, अपील टू ट्राइब्यूनल एंड एक बस वाइंडिंग अप और रह गया, वाइंडिंग अप का सेक्शन मार्क कर लीजिए, वाइंडिंग अप का सेक्शन 273 मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब बस एक बार मैं सेक्शन 2 में जा रही हूँ ताकि मैं आपको क्लॉज बता सकूं। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हर एक्ट में आपका ये चीज देखना है आपको, ये कौन से 2013 में आया हुआ एक्ट है ये, और ये एक्ट का नंबर कितना है, एक्ट नंबर 18 आपको दिख रहा है ना। अब आपको सीरीज नंबर समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज है, अगर कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट आपको देखना है, वो आप कहाँ से देखते हो, वेयर डू यू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट इज सीन फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ अ एक्ट। और प्रियम्बल कहाँ मेंशन होता है, प्रियम्बल यहाँ पे मेंशन होता है, जैसे जहाँ पे ये डिटेल लिखा होता है ना, नाम, ये इसके बाद ये जो दो तीन लाइन होते हैं ना, दीज लाइन्स, इस लाइन को आप क्या बोलते हो, इन लाइन्स को आप बोलते हो, दीज आर द प्रियम्बल्स ऑफ अ एक्ट। ओके। अब बस डेफिनेशन में जल्दी से मार्क कर लीजिए, ये सब मैं बस बता रही हूँ आपको, मार्क जो मैं बोलूंगी खाली वो करना। इसमें ये बताया गया एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सबसे पहले मार्क करिए 5, क्लॉज 5 मार्क करिए, क्लॉज 5 मार्क करिए, आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल जहां लिखा होगा वहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है मतलब। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, बस इतना मार्क करिए, बड़ा बड़ा गोला मत बनाना, जस्ट एसोसिएट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, क्लॉज 6, क्लॉज 9, क्लॉज 6, क्लॉज 9, क्लॉज 15,
clause 15, 20 clause 20, 21, 22, छोटा छोटा मार्क करना। कोई आपको ये ना बोले कि आपने नोट्स बना के लेके आए हो, जस्ट हल्का सा मार्क करना। देन डिबेंचर 30, 32 डिपॉजिटरी, देन 42 फॉरेन कंपनी, देन होल्डिंग कंपनी 46। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं आपके। देन लिस्टिंग कंपनी 52, मेमोरेंडम 56, नेटवर्थ 57, नेटवर्थ 57, 63, 68 प्राइवेट कंपनी 68, प्रमोटर 69, 69, 70, 71 तीनों इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। Related party not that important for you people. Small company 83, 85. That is enough. सेक्शन नंबर 3 भी मार्क कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, दैट इज इट। कंपनी लॉ आपको इतना ही रिवाइज करना है, वैसे भी बहुत कम मार्क्स के लिए आता है। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स, कल मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स थोड़ा दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सेक्शन में क्या आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहाँ मेंशन्ड है, मेमोरेंडम कहाँ मेंशन्ड है, कोई अगर ऑफेंस दिया है फॉर एक्सटॉर्शन ऑफेंस कितना आपको पनिशमेंट है, तो आप एक्सटॉर्शन के सेक्शन में जाओगे एंड उस सेक्शन से आपको यू विल हैव टू टेक आउट कि कितना पनिशमेंट कितना है। आपको रटने की, कोई भी रटने की चीज रटने की जरूरत नहीं है। अब एआईबी में देखो, अगर जनरल कैटेगरी से हो आपको 45% ही क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है ना। दैट मीन्स अगर आपको 45% एंड अगर ओबीसी है तो 40% एंड ओबीसी एंड बाकी किसी कैटेगरी से 40%, तो 45% मार्क्स का मतलब है आप अपना 60% दो, 60% भी दो तो भी आपको सेटिस्फैक्टरी पास हो जाओगे। बट एम फॉर 100 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। एंड आपका आइडिया क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सेकेंड, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन एट ऑल। कभी भी एक क्वेश्चन पे भी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, सारे पहले देखोगे एंड बस क्वेश्चन मार्क कर लेना। और एक और चीज करना, अगर जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है या फिर आपके पास बैराक नहीं है, तो आप उसको पेंसिल पेंसिल भी लेके जाना, क्वेश्चन पेपर में बस इतना लिख लेना कि ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट का है, एमबी एक्ट। ये एक तरीका है। अगर आपके पास बैराक नहीं है, ठीक है, आप किसी से मांगना चाह रहे हो, तो डोंट वेस्ट टाइम मांगने का। ड्यूरिंग योर व्हेन यू आर गिविंग योर पेपर 100 तक पहुंचने से पहले टाइम मत वेस्ट करना। बस आप मार्क कर लेना कि आपको किसी से लेना पड़ेगा एमबी का, आपके पास बैराक नहीं है या फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बैराक नहीं है, तो आप छोटा सा लिख लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन साइड में, ताकि आपको दूर से पता चल जाए कि आपको कौन सा बैराक मांगना पड़ेगा औरों से। आ रहा है पॉइंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइड में ऐसे मेंशन करोगे तो यू नो दैट यू हैव टू गो एंड आस्क फॉर दिस पर्टिकुलर बैराक। ये हो गया आपका कंपनीज, मैंने मार्क करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगला एक सेकेंड, लेट मी जस्ट स्टॉप माई शेयरिंग एंड नाउ टेक आउट योर फैमिली लॉ। फैमिली लॉ निकाल लीजिए। फैमिली लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5। कंडीशन ऑफ मैरिज बताया गया है, सपिंडा नहीं होना चाहिए, मेजर होनी चाहिए, वो सब आपका 5 में दिया गया है। 7, 8 में सेरेमनीज रजिस्ट्रेशन सब बताया, मार्क नहीं करने की जरूरत, 5 ही मार्क करो बस। उसके बाद 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 9, 10 रेस्टिट्यूशन। दो, अगर आपकी नहीं बन रही आपकी पत्नी के साथ, आपके पास दो सोल्यूशन है। एक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल, मतलब वो अगर सेपरेट होकर रह रहे हैं, ठीक है, द ऑप्शन दैट यू हैव इज यू कैन आस्क फॉर अ जुडिशियल सेपरेशन और यू कैन आस्क फॉर अ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कि वो साथ में आके रहे।
तो ये दोनों चीज कहाँ मेंशन है, 9 एंड 10, मार्क कर लीजिए 9 एंड 10। उसके बाद आपकी जो आपके आपके जो मैरिज है, क्या क्या हो सकते हैं, वॉइड हो सकता है, मतलब आपने शादी कर ली बिल्कुल ही गलत, जो 5 में एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल के करे बिना किए है, तो आपके तीन होते हैं, सेक्शन नंबर 11, 12, 13, तीनों मार्क करो। वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड मैरिज है 11 में, वॉइडेबल मैरिज है 12 में। फिर डाइवोर्स के बारे में बताया गया है 13 में, डाइवोर्स के बारे में बताया गया 13 में। म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स करना 13 बी में। म्यूचुअल कंसेंट के साथ मतलब दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें तो डाइवोर्स चाहिए, 13 बी में है। उसके बाद लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड इज 16 में दिया है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्टली मार्क करो 24, पेंडेंट लिटे। इसका क्या मतलब है, जब लिटिगेशन पेंडिंग चल रहा है, पेंडेंट लिटे मतलब व्हेन द लिटिगेशन इज इन प्रोग्रेस, उस टाइम पे भी यू कैन आस्क फॉर सम अमाउंट फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, पेंडेंट लिटे। उसके बाद दैट इज इट, कम टू द नेक्स्ट बैरक, हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट, बैरक नहीं है तो एक पेपर में लिख लीजिए, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस हैं कॉग्नेट एग्नेट्स वगैरह के, तो सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 6, सेक्शन 8, 14, 15, 14, 15, 20, 14, 15, 20। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें यही है कौन गार्जियन हो सकता है, किसको आप किसको आप गार्जियनशिप में ले सकते हो, तो ये सब दिया है। 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 8। अगला बैरक है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें मार्क करिए, इंपॉर्टेंट, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8। उसके बाद मेंटेनेंस में आ जाइए। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में तीन ही चैप्टर, चार चैप्टर है, इसको ऐसे डिवाइड किया है, पहले अडॉप्शन के सारे प्रोविजंस दिए हैं, फिर मेंटेनेंस के सारे प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस का नंबर लिख लीजिए 18, 19। सारी मेंटेनेंस की ये प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट 18 और 19 है। अब मुस्लिम लॉ में आ जाए, मुस्लिम लॉ में आ जाए, मुस्लिम लॉ में लिखिए, मुस्लिम लॉ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1856। इसमें केस भी लिख लीजिए, डैनियल लतीफी, डैनियल लतीफी 2001 का केस है। मुस्लिम लॉ जहां लिखा है वहां पे आप अपनी शीट में लिख लीजिए, बैरक में मत लिखना। शायरा बानो, शायरा बानो केस, और दूसरा केस है शाह बानो केस, शायरा बानो ट्रिपल तलाक एंड शाह बानो मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम विमेन। तो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स विमेन में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, ठीक है। अब नाम लिख लीजिए मुस्लिम वालों का, तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। छह छह सेक्शंस, छह सेक्शन, 7 सेक्शंस इतने ही हैं इन सब में। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937, मैं बस नाम दे रही हूँ ताकि अगर आपको प्रिंट आउट या कुछ अरेंज करना है तो आपको पता हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन, एंड एक और है बस, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अच्छा, आप लोगों ने, आप फॉलो कर रहे होंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट, कल ही आया है वो
16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू वो तमिलनाडु का गवर्नर्स केस को जो है एक तरीके से ओवररूल कर दिया। ठीक है, मैंने मार्क करवा दिया, फैमिली लॉ मार्क करवा दिया, कंपनी मार्क करवा दिया। अब एनवायरमेंटल और करा के आज के लिए इतना इनफ रहेगा। एनवायरमेंटल लॉ की बैरक्स निकाल लीजिए। एनवायरमेंटल लॉ में बाकी आप देखो ना देखो, 3 एक्ट को देखने ही देखने हैं। एक है आपका एनवायरमेंटल एक्ट 1986, एयर एक्ट और वाटर एक्ट। तीन नहीं, चार, सॉरी। एयर एक्ट है 1981, वाटर एक्ट है 1974 और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2021, 2021। ओके, ये 3-4 बैरक्स ले जाना। मैं एनवायरमेंटल एक्ट का सबसे पहले मार्क करवाने जा रही हूँ। एनवायरमेंट एक्ट में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 चैप्टर्स है, ऊपर ऊपर से जल्द बता रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर 2 जो है ना, उसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं, तो सेक्शन नंबर 4 से लेके 6 तक इंपॉर्टेंट है। 4 से लेके 6 तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 10, 10 एक्चुअली 10 से ऐसे है कि एंट्री करना, सैंपल कलेक्ट करना, उसको रिट्रीव करके लेके जाना एंड सैंपल से लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना एंड उसके बाद फाइनली रिपोर्ट देना। 10 से लेके स्टोरी लाइन में ऐसे ही है। आप कहीं एनवायरमेंट चेक करने जब जाते हो, एनवायरमेंटल असेसमेंट करने जाते हो, तो क्या करते हो, 10 से स्टार्टिंग है स्टोरी। एंट्री करना, उसको एनालाइज करना, लैब में लेके जाना एंड उसके बाद उसका सैंपल से रिपोर्ट बनाना। ठीक है, आपको ये सारा मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब ऑफेंस बाय कंपनीज लास्ट 16-17 मार्क कर लीजिए, 16 एंड 17। देन सेक्शन 22, सेक्शन 24। ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एनवायरमेंटल लॉ ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका प्रियम्बल। अभी मैंने इसका सॉफ्ट कॉपी में नहीं रखा, तो मैं आपको बस प्रियम्बल में क्यों इंपॉर्टेंट है वो रीजन बता देती हूँ। एनवायरमेंटल लॉ की प्रियम्बल में ना 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के नाम दिए गए हैं एंड स्पेसिफिकली ये बोला गया कि उन कॉन्फ्रेंसेस की जो प्रोविजंस है उसको हमारे इंडिया में लेके आने के लिए हम एनवायरमेंटल लॉ को लेके आए हैं, मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट आया है। तो इसलिए ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये जो कॉन्फ्रेंसेस के नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका प्रियम्बल देखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनवायरमेंटल एक्ट में क्या क्या चीजें, किन किन चीजों को आप प्रेफर करते हो। तो उसमें आपका आएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं शॉर्ट में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 एंड और बाकी सारे इंक्लूसिव ऑफ थिंग्स प्रोविजंस दैट वाज मेंशन्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दे दिया, रियो डी जेनेरियो दे दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डाल के आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस के बेस पे आपका एनवायरमेंट एक्ट आया है। इसलिए मैं आप एक बार इसका प्रियम्बल पढ़ लेना, इस एक्ट का नाम पढ़ लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, लेट मी जस्ट ओपन इट, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपका बैराक मेरे जैसे है, अगर जैसे एक ही बैराक में सारा एनवायरनमेंट है, तो प्लीज स्टिकी नोट्स लगाना जहां जहां खत्म हो रहा है, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास क्रिमिनल मैनुअल है, तो उसमें तीनों क्रिमिनल लॉज एक साथ होंगे ना, तो उसमें मार्क कर लेना जहां पे एविडेंस स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आईपीसी स्टार्ट हो रहा है, जहां पे अब तीनों चेंज हो गए तो नए क्रिमिनल लॉ में भी आप ऐसे ही मार्क कर लेना। सिमिलरली जैसे मेरे पास एनवायरमेंट है, यहाँ पे मेरे पास इस छोटी सी बुक में ऑलमोस्ट 7 बैरक्स हैं, तो मैं 7 स्टिकी नोट्स लगाऊंगी एंड स्टिकी नोट्स के साइड में मार्क कर दूंगी कि यहाँ पे मेरा एयर एक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मेरा वाटर एक्ट स्टार्ट हो रहा है, ताकि आपको ऐसे ढूंढना ना पड़े। वाटर एक्ट, वाटर एक्ट और एयर एक्ट ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं। ये इनका मेन पर्पस है बोर्ड सेटअप करना, और ये बोर्ड ही सारा काम करती है। ठीक है, वाटर एक्ट में एंड एयर एक्ट के। तो वाटर एक्ट में बोर्ड सेटअप हो रहा है सेंटर एंड स्टेट बोर्ड हो रहा है आपके चैप्टर नंबर 2 में। फिर जॉइंट बोर्ड है चैप्टर नंबर 3 में।
उसके बाद उनके पावर फंक्शन है अगले चैप्टर में, एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं ये है चैप्टर 4 में। उसके बाद फंड्स इकट्ठा कर पाना, पेनल्टी प्रोसीजर बताना। आप बस इसके हेडिंग्स पढ़ के जाना। क्या पढ़ के जाना? बस हेडिंग्स, जैसे मैंने अभी बोला ना, रीड किया, वही आपको करना है इन एनवायरमेंट एक्ट्स में। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, नथिंग अबाउट इट। आप डीप में जाके स्टडी करना जरूरत नहीं है, बस इंडेक्स निकालो और जैसे मैंने अभी रीड किया वैसे आप रीड करोगे। ठीक है। उसके बाद एनजीटी। एनजीटी में मार्क कर लीजिए, एनजीटी 2010 मैंने बताया ना, 345। 345 ट्राइब्यूनल को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो, कंपोजिशन क्या है ट्राइब्यूनल का, एंड ट्राइब्यूनल का क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन ये है आपके 14 में, सेक्शन 14। क्या क्या केसेस वो सेटल, ट्राइब्यूनल सेटल कर सकता है, क्या रिलीफ दे सकता है, कितना कॉस्ट मांग सकता है, ये सब। यू डोंट हैव टू रीड इट, आपको बस जैसे मैं बोल रही हूँ ना पूरे ऊपर से, आप बस इसका इंडेक्स रीड करना। ठीक है। ऐसे एनवायरमेंट लॉ भी आपका खत्म हो गया। तो दिस इज हाउ सिमिलरली मैं बाकी सारे बैरक्स भी, कल आई हैव मेड अ पाइल ऑफ बैरक्स हियर। टॉर्ट वगैरह, टॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दूंगी, क्योंकि टॉर्ट में क्या है ना, टॉर्ट में केस लॉज है। सिंस वो केस लॉज है तो केस लॉज इंपॉर्टेंट है, वो आपके बैरक्स में नहीं होगा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉर्ट के इंपॉर्टेंट बैरक्स, लेट मी जस्ट सी कितने मार्क्स का है टॉर्ट आपका। जस्ट अ सेकेंड, मिलके देख लेते हैं। टॉर्ट आपका है हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट 5 में है, कंज्यूमर एमई के साथ ही है, बट स्टिल मैं आपको केस लॉस के नाम ऊपर ऊपर से बता दूंगी। कुछ मैगजीन्स है, डैमनम साइन इंजोरिया, इंजोरिया साइन डैमनम, इनका मतलब बता दूंगी, एंड ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाके, आप एमसीक्यू होता है ना, तो आप यू विल बी एबल टू गेस द आंसर। ठीक है। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। काफी सारा मैंने बता दिया है, चीजें दे दिया है। कल थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट जो अभी आज हमने टच नहीं किया उसको उठाऊंगी। अगर इज देयर इफ अगर सबको मिलके अगर कोई कॉमन कोई सब्जेक्ट है जिसको यू वांट लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, तो आप बता दीजिएगा कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू मेरे को, एंड अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। अभी आज जितना हमने किया है उसमें कोई डाउट है या फिर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक हाँ, टाइम इट इज 9। मैम शुड If anybody have any kind of question, you just unmute yourself and ask question directly to the ma'am. And ma'am, could you please unmute yourself as well? Good evening, S. Kumar this side. यस, Uh, गुड इवनिंग I would सर। like to know, yeah, S. Kumar this side. I would like to have case studies, all case studies. ऑल केस यू विल लाइक टू हैव केस स्टडीज सर। केस स्टडीज जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो लैंडमार्क या फंडामेंटल होंगे, वो मैं आपको क्लास में लिखवा दूंगी। Okay. ओके। And also, if in case, will you be sharing those details, like your notes? माई नोट्स, Yeah. माई नोट्स आर वेरी स्कैटर्ड एंड बल्कि सर, नोट्स तो आप वैसे भी, मैं अगर शेयर भी कर दूंगी यू वोंट बी एबल टू टेक इट, और उन नोट्स के आपको फायदा भी नहीं होगा। आपको फायदा वो होगा जो मैं जैसे क्लास में अगर आपको बता रही हूँ, जो मार्क कराना है वो, एंड अगर जैसे मैंने बोला इंडेक्स रीड करो एक सब्जेक्ट का, बस उन्हीं के इंडेक्स रीड करो, बाकी आप खाली बैरक्स लेके जाओ, अदरवाइज इसमें मेरे नोट्स वोंट हेल्प एनी, वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू सर। And in some books, we are not able to find out the sections. So can you please help out how to find out sections? इंपॉर्टेंट सेक्शन यू मीन? No, no. In general, suppose if they ask any section, it comes under what section? हम वो ओके। सेक्शन को कैसे ढूंढेंगे? वो अच्छा अच्छा, कहाँ कैसे मिलेंगे? ढूंढेंगे? कल मैं एक काम करती हूँ, आईपीआर का ऐसे करा के दिखाऊंगी, क्योंकि अच्छा, आईपीआर इज यूजुअली सब्जेक्ट जो कि सबका स्पेशलाइजेशन नहीं होता, तो मैं आईपीआर में क्वेश्चन के साथ मैंने ऐसे करा के दिखा दूंगी कि आईपीआर के क्वेश्चन कैसे आप ढूंढोगे, कैसे कीवर्ड्स निकाल के आप यू कैन सर्च इट फ्रॉम द बेयर एक्ट। हाँ, because I last time I struggled a lot, so immediately I was not able to trace those हाँ, sections. एक्चुअली दैट इज अ मेन पॉइंट, इवन इफ यू हैव अ बुक, इफ देर इज अ डिले इन सर्चिंग, एंड उसके कारण से अगर आप नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। इसके लिए देर हो गया है। इसके हाँ लिए हाँ हाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिस करना पड़ा। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। आई टेल यू कीवर्ड्स कैसे निकाल के उसको रिलेट करना है, एंड आंसर कैसे करना है। एनीथिंग एल्स? ओके, धन्यवाद। ओके। हेलो। एनीवन एल्स हेलो हु मैम। वांट्स टू आस्क? हेलो। मैम लीगल मैगजीन्स भी आएंगे इसमें? हाँ, लीगल मैगजीन्स बहुत कम पूछे जाते हैं, बट जैसे टॉट
क्वेश्चन हो गया जो कि जिसमें कोई सेक्शन लैंग्वेज नहीं है, तो उनमें तो फिर आपके लीगल मैगजिम्स ही होंगे। तो वो जो लीगल मैगजिम्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं क्लास में लिखवा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? मैडम आपका नंबर या ईमेल आईडी मिलेगा अगर कुछ डाउट रहेगा तो? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शोन दैट इन द फर्स्ट थिंग ऑल्सो, एंड आप मेल ड्रॉप कर लीजिए। और बाकी कोई डाउट होगा आप कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करके मेरे को जो डाउट है वो आप भेज सकते हो। अच्छा, यू कैन सेंड इन अ मेल, आई रिस्पॉन्ड। 1 मिनट आप अदरवाइज, जरा होल्ड कर सकते हो मैडम? सॉरी, जरा 1 मिनट आप होल्ड कर सकते हो, जरा मैं नोट कर लेता हूँ। इट इज बेटर अगर कोई कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू, अगर इफ यू आर आस्किंग दैट वुड बी बेटर अप्रोच। बट इफ ओके यू कैन आस्क डेफिनेटली, जब तक आपका एग्जाम, आप व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम योर एग्जाम यू आर फ्री टू आस्क। ओके ओके। रेस्ट, डू If नॉट टेक anybody have दिस। any other kind of question, you just unmute yourself and ask question directly to the ma'am. या राइट। Hello, ma'am. I Hello. hope the speed that I'm following is okay for everybody. Yes, yes. My question is on the printout of the direct. What is the question? Is it allowed? Means what? They will Your check my printouts or they can question anything on. Okay. So if you want to take out the printout, if you are taking your printout should not look like your notes. उसमें आप कुछ लिख के नहीं ले जा सकते हैं। उसमें जो बैराक के जो जैसे एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चनेबल हो जाता है, प्रिंट आउट अवॉइड ही करो तो बेटर है। क्योंकि एक तो प्रिंट आउट में से बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है कि ये किसका प्रिंट आउट है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया ना, जैसे ये उठाते हैं मुझे पता है फैमिली लॉ का है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बाइफरकेशन बहुत आसान हो जाता है। बट फिर भी अगर जैसे बहुत ज्यादा पैराक्स हो गए एंड आप बल्कनेस कंप्लीट कम करने के लिए बस इंडेक्स इंडेक्स लेकर जा सकते हो, इट इज अलाउड। बट प्लीज रिमेम्बर उसमें कुछ मार्क्ड ना हो। जैसे आप अपने हाथ से कुछ उसमें नोट्स नहीं बनाओगे। समझ में आ रहा है? इट शुड नॉट लुक लाइक अ नोट्स, अदरवाइज बैराक्ट एंड योर प्रिंट आउट इज ऑल द सेम। Okay. एनीथिंग एल्स? Ma'am, can you hear me? यस, यस। The actual exam will start at 1 p.m., but then राइट। we've been asked to report at 11:30. आई So, is it really necessary that we report at 11:30, or we can reach by 12:30 also? Okay, please don't do that, please don't do that। If it is you, if any which ways you have to take a leave, अगर आप, if you people are working or if you are studying someplace, I am telling you from my own experience, there is a lot of rush that comes in particular center, and उसके बाद आपको सेंटर के अंदर जाने के बाद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आप अगर अपनी सीट में बहुत टाइम से आ गए हो, आपको फोटो चिपकाना है, आपको इधर उधर वो थंब इंप्रेशन लगवाते हैं, तो द पॉइंट इज अगर ये सब प्रोसीजर में आपका कोई भी 15 भी मिनट वेस्ट हो गया ना, ये आपका फाइनल 3 घंटे से खा जाएगा। क्योंकि ये Okay, प्रोसीजर तो करना ही करना पड़ेगा। तो आप okay, पहले जाके पीसफुली बैठो, एंड मैं तो कहती हूँ आप पहले जाके आप अपना बैरक्स को सेट कर लो, अपने जहां पे भी आपको बिठाया जाएगा ना वहां पे सेट कर लो, सिविल क्रिमिनल छोटे छोटे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ना। एंड आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने के लिए आप अगर बैरक वगैरह सेट करके बैठोगे ना, और आसपास थोड़ा सा आप देख के बैठो कि आसपास वालों के पास कौन कौन से बैरक्स हैं। अगर इफ यू नो व्हाट बैरक्स यू डोंट हैव, तो एक बार आसपास देख लो कि कौन है जिसके पास वो बैरक है। जब आपको जरूरत होगी तो आप किससे किससे मांग सकते हो। उसको थोड़ा फ्रेंडली स्माइल वगैरह देख के बैठो, एक थोड़ा सा माहौल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस right. पर्टिकुलर एग्जाम का। And I hope there's no dress code for the exam, ma'am. नो, देयर इज नो ड्रेस कोड, नो Perfect, सच। perfect. Thank you. Ma'am, one more thing. Tomorrow, can you cover the major laws? Today we covered the minor laws, ma'am. I So, can, no, no, today what, because see, देखो, there is proximity of time। I told you in detail the minor law only for the first purpose कि आपको एक clarity हो कि आपको study कैसे करना है। मैं right, पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से नहीं, कि आपको स्टडी कैसे करना है। देखो, अगर मैं कोई भी बड़ा उठाती ना, मैं उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाती, मतलब मैं वो टॉपिक सब्जेक्ट भी नहीं कवर कर पाती और मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाती। तो बट मैं एक चीज जरूर कर सकती हूँ, इफ पॉसिबल, मैं छोटा सा कुछ की नोट जैसा समथिंग जिससे आपको एक आइडिया लग जाए बीएनएस आईपीसी वगैरह में, तो वैसा कुछ इफ पॉसिबल आई विल डू। great. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। एनीथिंग एल्स? मैडम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फाइनल इधर कल या परसों, कल ये 2 क्वेश्चन पेपर्स है ना, आप थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ढूंढ कर सकते हैं, आप थोड़ा
हाँ, idea मैंने देगा मैंने तो आपको प्रॉमिस कर दिया ना, मैं कल जैसे मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया आईपीआर के जो क्वेश्चन है थोड़े से और मतलब इनडायरेक्ट आते हैं ना, तो वो उसको जैसे आईपीआर के क्वेश्चंस को कैसे आप ढूंढ के आप आंसर कर पाओ एग्जाम्पल थ्रू, मतलब विल गो थ्रू द क्वेश्चन नहीं पेपर एक एंड आखिरी दिन कम से कम आखिरी दिन में ना कम से कम एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पेपर। को कैसे सॉल्व करना है। ओके, आई विल ब्रिंग इन सम क्वेश्चन प्री एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व इट इन क्लास ओनली। Okay, thank you. Because really that will help us to Right. attend the It exam will well. help you improve your speed also and the way that you can attempt. Whenever you are sitting, please bring all the barracks that you have and sit. ठीक है? मैम एक Yeah. रिक्वेस्ट और थी, जो मेजर बेरेक्स है ना जिसमें 10 मार्क्स के 8 मार्क्स के, उनके हाँ। इंपॉर्टेंस जैसे आज आपने बताया कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सेक्शंस में सबके बता दूंगी आपको। हाँ मैम, वो इजी रहेगा हमारे लिए। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। One more thing, यस प्लीज। like हम लोगों को वहाँ पे फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, नो, नॉट लेकिन हम अलाउड। लोग फोन कैरी करके ले जाते हैं, वहाँ कोई रखने की फैसिलिटी रहती है कुछ ऐसा? एक्चुअली कैसे आप कर सकते हो, आप अपने ही बैग में रख के बैग को क्लासरूम के बाहर रख सकते हो। ओके। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। इफ यू हैव गिवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें बहुत ज्यादा चेकिंग होता है, आपको वेन्यू के बाहर ही रखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको काफी रिलैक्स होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, काफी चीटिंग भी होती है, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो बट वो सबका अपना अपना कॉल होता है। तो आप ले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जा सकते हो, बट क्लासरूम के अंदर अलाउड नहीं होता। आपके जेब में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपना बैग में रख के बैग बाहर रख सकते हो। एनीथिंग एल्स? एक फाइनल क्वेश्चन, आप जो सेक्शंस दिए थे ना वो पहले लिख के दे जा सकते हो ना, No, उसमें कोई no, प्रॉब्लम नहीं no, होगी ना? sir, no, sir. That will amount to notes only. That will amount to notes only. आप अच्छा अपना कुछ भी नहीं लिख के ले जा सकते सर। आप अपना खाली बैराक ले जा सकते हो, प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। प्रिंट आउट में मतलब बैराक का ही, बैराक्स बेसिकली। नहीं आप जो बोल रहे बराबर है, मगर आप नोट्स नहीं दिए थे ना, खाली टॉपिक्स दिए थे ना, हाँ, वो भी अलाउड नहीं है। सर वो आपके नोट्स जैसे नहीं दिखने चाहिए, पॉइंट ये है। अगर इफ और वैसे भी सर एक चीज है, आप बहुत सारा कंटेंट लेके जाते हैं हम, तो उसके बीच में से कोई दे डोंट लुक, जैसे अगर सपोजली मेरे सारे बैरक्स खोल खोल के चेक नहीं करते हैं एक एक पेज में आपने कुछ मार्क किया नहीं किया, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, चल जाता है। बट अगर अवॉइड कर सको तो बेटर है। अच्छा ओके, धन्यवाद, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी वांट्स टू आस्क? Ma'am, is there any question in the chat box? No, ma'am. I think there is no more question left. So we can wind up today's session. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am, for taking today's lecture. Thank you so much. Thank you.